Now we have to discuss the membrane permeability. Now we have to discuss the membrane permeability. We know that our plasma membrane is made up of lipid bilayer molecules, plus there are embedded proteins. These protein may be either integral in the lipid bilayer or they may be at the peripheral side of the plasma membrane. This lipid bilayer is semi-permeable in nature. It means it allows some molecules to go inside and restrain or constrict other molecules As you can see in the diagram, we are having certain gases like nitrogen, oxygen molecule are there, or the carbon dioxide molecule. These gases are able to move freely across the plasma membrane. We are having certain gases like carbon dioxide, nitrogen, or oxygen. They are the gases. They are able to freely move across the lipid bilayer membrane. Even some अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे जो पोलर मॉलिक्यूल्स है अनचार्ज है लेकिन वो न्यूट्रल है चार्ज में, लाइक यूरिया और इथेनॉल, दैट इज ऑल्सो एबल टू पास थ्रू membrane very easily. Even water is also able to move within the plasma membrane. Now it's, I said semi permeable, it means कोई मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, कोई मॉलिक्यूल अंदर नहीं जाएगा. Now the another example is there that we are having large uncharged polar molecules जिनका साइज बड़ा है लेकिन वो क्या है, वो अनचार्ज है, उनका कोई चार्ज नहीं है. लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल इज अवर ग्लूकोज. बेस्ट एग्जाम्पल इज अवर ग्लूकोज. For transportation of glucose inside the cell through the plasma membrane, we need a carrier molecules. We need a carrier molecules to take the glucose from the outside the environment to take into the inside the cell. Like we are having different ions: potassium, magnesium, calcium, chlorine, phosphorus ions are there. They also can't move this plasma membrane. They need carrier molecules. वो आप आगे जाके इस यूनिट में ही पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह. Then we are having charged even polar molecules like amino acids. They are having their charge, ATP or glucose 6 phosphate. Again, these molecules need carrier to pass through the plasma membrane. So what it means? It means that the cell is having ability to maintain its property, to allow selectively some molecules from outside to inside and to move selective molecules from inside to outside. So such membranes are called as selectively permeable. Such membranes are called as selectively permeable. So we can say the membrane, it allows some substance to move across and some will not move across. Cell has ability to control or make a barrier depends on the cell capacity. सेल में कितनी कैपेसिटी है चीज़ें रिटेन करने की. ये सेल की कैपेसिटी है, वो कभी इंक्रीज भी कैपेसिटी कर सकती है, डिक्रीज भी कैपेसिटी कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सेल कि सेल कहाँ पे है. वो इंक्रीज कब कैपेसिटी करेगी, जब सेल ये हो रही है, ग्रो हो रही है. डिक्रीज कब करेगी अपनी कैपेसिटी, जब सेल को रेडी होना है सेल डिवीजन के लिए. Even this cell is having ability to maintain the concentration of many substances. They maintain they are able to throw the waste components from inside the cell which are produced by the metabolic activity to the outside. They also maintain their volume. जब एक सेल मेच्योर सेल होती है जिसको ग्रो नहीं करना होता, वो अपना क्या करती है, वो मेंटेन करती है वॉल्यूम. और सेल अपने अंदर इतना ऐसा पीएच रखती है जो हर एक ऑर्गेनली को क्या होता है, सूट होता है, कि हर एक ऑर्गेनली के उसमें कंफर्टेबली रह पाती है. कैन एनी वन टेल मी द दिस pH of the cell? So we know that we are having many plasma, matlab like we are having many proteins which are present in our plasma membrane. They are having different types. हमने क्या बोला, जो हमारे प्रोटीन्स है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हैं. फर्स्ट सेकेंड थिंग वी कैन से, जो ये हमारा है मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज फ्लूइड मोजैक. फ्लूइड मीन्स दे आर लिक्विड, दे कैन मूव. मोजैक मीन्स उसमें कुछ कुछ रफली पैचेस है. लेकिन जहाँ पे इसमें रफली पैचेस है, लाइक द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, दे रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ लिपिड्स. दे रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ लिपिड्स. जैसे फ्लूडिटी जो हमारी है ना,
इन प्रोटीन्स की वजह से जो ये प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, ये इनकी मूवमेंट्स को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं. लाइक वी आर हैविंग द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज cytochrome oxidase. This enzyme or this protein is involved in the synthesis of proteins. या जो ये ऐसा देखा गया है जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, we will take the example of the mitochondria. Okay, we are talking about the mitochondria में जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, they constitute 30%. जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना ऑर्गेनली, उसका टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस इज 100%. और जो हमारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है दैट कॉन्स्टिट्यूट 30%. मीन्स 30 जगहों पे हमारे जो लिपिड्स है वो क्या है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा सकते. बट द 70% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फ्लूइड इन नेचर. ये जो हमारा लिपिड्स है दे हैव मोबिलिटी इनमें, लेकिन जो ये मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन्स. दीज प्रोटीन्स ये रिस्ट्रिक्ट कैसे होता है, ये जो प्रोटीन्स है इसमें कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पे प्रोटीन और प्रोटीन की इंट्रैक्शन होती है. ये जो रिस्ट्रिक्शन है किनका, मेम्ब्रेन मोबिलिटी का, इसका क्या फैक्टर है, इसका फैक्टर ये है कि वहाँ पे प्रोटीन्स के बीच में क्या होती है, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन. लाइक द बेस्ट एग्जाम्पल इज गैप जंक्शंस, जो हम लोग सेल्स में पढ़ते हैं गैप जंक्शंस. और जो प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन है दे कॉन्स्टिट्यूट प्रोटीन्स अप 2 to 20%. ये प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन वाले प्रोटीन्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो कितना कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 2 से 20% तक. और कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी है जो हमारी पेरिफ्री में होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स है जो सिर्फ बाहर की तरफ होते हैं, वो हमारी लेटरल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं. अगर ये बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ मीन्स जो लिपिड का हम लोग आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म, फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म इन केस ऑफ लिपिड्स. कुछ कुछ ऐसे लिपिड होते हैं जो नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, दैट इज कॉल्ड है फ्लिप फ्लॉप. तो इसमें क्या है कि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है, एज यू कैन सी हियर द पेरिफेरल प्रोटीन दे रिस्ट्रिक्ट लेटरल मूवमेंट चीम क्या करा, रिस्ट्रिक्ट करा. इवन इन सेल्स वी आर हैविंग, जो सेल है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ऐसा नहीं कि जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ पूरी फ्यूज हो चुकी है, नहीं. वी आर हैविंग इंटरसेल्यूलर स्पेस बिटवीन द सेल्स. जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक सेल की, और जो दूसरी सेल है उसके बीच में एक स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज intercellular space, and this space is up to 10 to 15 एंगस्ट्रॉम डिग्री. जो इसकी डायमीटर है, विड्थ है, वो कितनी है, 10 से 15 एंगस्ट्रॉम डिग्री तक. और ये जो देखा गया जो स्पेस है ऑल ओवर द ह्यूमन बॉडी और द यूकैरियोटिक सेल, दिस स्पेस इज यूनिफॉर्म. हर एक जगह इतनी ही स्पेस पाई जाती है. और इस स्पेस में एक डेंस इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस पाया जाता है. जो स्पेस है खाली तो नहीं रहेगी, उसमें क्या होता है, सॉरी नॉट डेंस, लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन वाला एक म्यूकस पाया जाता है, दैट वी कॉल्ड एज म्यूकोपॉलीसेकेराइड. जो ये स्पेस है बिटवीन द सेल्स, दे हैव लो इलेक्ट्रॉन डेंस molecules present in them, and it has been seen that these electron dense जो molecule ये mostly क्या होते हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड. नाउ द लास्ट, ये मतलब लास्ट इसका ये है कि अभी हमारा हो गया प्रोटीन्स का पूरा डिस्कशन. नाउ वी आर हैविंग द मतलब लाइक वी हैव टू नो द, जो हमारे अभी लिपिड बाइलियर है ना, मैंने बोला कि फ्लूइड है नेचर में, लेकिन जो इसकी फ्लूइडिटी है वो मेंटेन कैसे होती है. द फ्लूइडिटी ऑफ द मेंटेन डिपेंड्स ऑन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एवरीवन प्लीज रिमेंबर. अगर ये आप डिस्कनेक्ट होते हो तो डोंट गेट पैनिक, आई विल रिकॉर्ड दिस, आई विल सेंड इट टू यू, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग बीच में नहीं रोकूंगी. जो ये हमारी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द फैटी एसिड चेन्स. जो ये हमारी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, इट डिपेंड्स ऑन द 3 फैक्टर्स. फर्स्ट जो हमारी फैटी एसिड की लेंथ है, लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन्स. सेकेंड unsaturated fatty acids. Third is the cholesterol. This is very important point, please do remember this thing. Fluidity of the membrane depends on the 3 factors: length of the fatty acid chain, saturated fatty acids, presence of saturated fatty acids, and the presence of cholesterol.
Now we will take a first we will discuss here, we will discuss phase transition. First we will be discussing the phase transition. What is this? ये छोटे छोटे concepts है. सो हमारे जो ये है लिपिड्स है वो क्या है, फ्लूइड इन नेचर है. दे आर हैविंग गुड एनफ स्पेस एज यू कैन सी इन द डायग्राम. जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तब क्या होता है कि जो ये लिपिड मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के साथ कंप्रेस हो जाते हैं. ये एक दूसरे के साथ एज यू कैन सी इन द डायग्राम ये क्या एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है ज़्यादा. जो हमारा फ्लूइड है ये फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चला जाता है. It means when there is decrease in the temperature, the fluid the fluid the fluid the fatty acids will get convert or transform into the crystalline structure. Means ये fluid से viscous structure में चले जाते हैं. viscous structure में क्या होता है कि ये जो lipid bilayer molecules है ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, ये एक दूसरे के साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. क्या हो जाता है एक दूसरे के साथ कंप्रेस हो जाता है. इट मीन्स ये इसकी फ्लूडिटी डिक्रीज कर रहा है, ये इसकी फ्लूडिटी डिक्रीज कर रहा है. देन द मॉलिक्यूल्स विच वर अर्लियर एबल टू पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन easily will not be able to pass. इट मीन्स ये क्या हो गया अभी इम्पर्मिएबल हो गया. ठीक है. इट मीन्स जो हमारे ये हो गए एक फर्स्ट मैंने क्या बोला, लेंथ ऑफ द फैटी एसिड चेन. दिस इज अ फेज, दिस इज कॉल्ड द फेज ट्रांजिशन. फेज ट्रांजिशन इज द process where our liquid state phospholipids which are present in the liquid state gets converted into or transformed into a crystalline or rigid structure, which gets converted into a crystalline structure. This state change in the state is called as जो ये change हो रही है state में from liquid to crystalline, this is called as phase transition. This is called as phase transition. नाउ ये हुआ फेज ट्रांजिशन. मीन्स जब फैटी एसिड जो लिपिड जो लिक्विड इसमें है पोजीशन में है वो किस में चले जाते हैं, क्रिस्टलाइन में. इट मीन्स क्रिस्टलाइन मीन्स सॉलिड स्टेट, मीन्स लिक्विड टू सॉलिड में जब चला जाता है वी कॉल दिस एज अ फेज ट्रांजिशन. दिस वाज अ स्मॉल concept here. Now the second is there कि when I said that the fluidity of the membrane depends on three things. Length of the fatty acid chain. We are having assume that we are having short fatty acid chain. अगर fatty acid chain छोटी है, the interaction between the lipid molecules will be less. There will be less van der Waals force of attraction. जो ये छोटे छोटे इनकी टेल्स है ना फैटी एसिड चेन की, इनकी हाइड्रोफोबिसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि इनकी लेंथ छोटी छोटी है. जब हम इनको क्या करते हैं हीट देते हैं तो हाइड्रोफोबिसिटी कम है, तो ये क्या हो जाता है जो हमारा लिक्विड ये है ना लिक्विड फैटी एसिड्स ये एक दूसरे के साथ दूर होते जाता है. क्या हो जाता है एक दूसरे के साथ दूर हो जाते हैं, वो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो गिर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वो गिर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. सो अगर हमारे पास फैटी एसिड चेन फैटी एसिड्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, हाइड्रोफोबिसिटी बिटवीन द फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर ये इजीली एक दूसरे का सेपरेट आउट नहीं होंगे. इट मीन्स ये इसकी फ्लूइडिटी मेंटेन रखेंगे. दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द ये क्या दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द ये लेंथ ऑफ द फैटी एसिड चेन. नाउ सेकंड द प्रेजेंस ऑफ द unsaturated fatty acids. Now the presence of the unsaturated fatty acid. जो ये saturated means क्या, सिंगल बॉन्ड है फैटी एसिड्स के बीच में. अनसेचुरेटेड मीन जब इसका ये फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होता है, फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होता है. जब भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है फैटी एसिड, जब भी फैटी एसिड्स में क्या होता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट, तो उसकी वजह से क्यों जो ये फैटी एसिड चेन है जो पहले स्ट्रेट थी सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है. एज यू कैन सी हियर ये क्या हो जाती है, ये बेंड हो जाती है. दिस बेंडिंग ऑफ फैटी एसिड गिव्स अ एंगल टू इट, सो दिस इज कॉल्ड एज किंक, KINK. दिस इज कॉल्ड एज किंक. तो इट मीन्स एक किंक की वजह से क्या होता है कि जो
ये है मतलब जो फैटी एसिड्स है ये एक दूसरे के साथ स्पेस मेंटेन करता है, और इसको जब टेम्परेचर देते हैं तो ये इजीली डिस्टर्ब नहीं होता है, तो फ्लूइडिटी मेंटेन रखता है। किंग की वजह से क्या होता है, स्पेस मेंटेन होती है, फ्लूइड नेचर उनका ज़्यादा अच्छा रहता है। प्लस उनका जब देते हैं ना इनको, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो ये इजीली डिस्टर्ब नहीं होता है। क्यों? एक तो फैटी एसिड चेन लेंथ अच्छी है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन ज़्यादा है, प्लस उनमें क्या है, डबल बॉन्ड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, तो इसकी वजह से जो ये है ये एक दूसरे के डिस्टर्ब नहीं होते हैं। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ हेयर, नहीं, ये जो फैटी एसिड्स है ना, फैटी एसिड चेन जो है हमारे, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द फ्लूइडिटी। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं फ्लूइडिटी। ऐसा देखा गया है जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं लो टेम्परेचर्स पे, उनमें हायर प्रोपोर्शन ऑफ फैटी एसिड पाया जाता है। जो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, मतलब लाइक इन कश्मीर वी आर हैविंग, सो जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे क्या देखा गया है कि उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हायर अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। Now, the last point is our cholesterol, presence of cholesterol. It has been seen in eukaryotic plasma membrane. There is the large amount of cholesterol present in it. जो ये हमारा cholesterol है, it's having, as you can see here, the dot. This is the hydrophilic end. This is the hydrophilic end of the cholesterol, which interacts with the hydrophilic end of the lipids, which interacts with the hydrophobic end of the lipid. और जो cholesterol का hydrophobic part है, this is within in the fatty acids. This is within in the fatty acid. It means वहाँ पे क्या हो रही है, ये जो ग्रीन वाला जो है वो है क्या है, उसके कोलेस्ट्रॉल का एक फॉस्फेट हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें 4 रिंग्स होते हैं प्रेजेंट जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक होता है। एक हेड होता है OH ग्रुप उसमें होता है, और 4 रिंग्स होते हैं। So this OH group is hydrophilic in nature. So this head will come on the where the head of the fatty acids are lying. Second is the इसका जो 4 सर्कल है, जो रिंग्स है इसके 4, these are hydrophobic in nature. So these rings are within embedded in the hydrophobic region of the fatty acid chain. Now there is a very strong attraction. There is again hydrophobicity between the lipid molecules have increased due to the presence of the cholesterol in it. So this cholesterol inhibits phase transition. अगर phase transition हो गया तो इंसान नहीं जिंदा रह पाएगा ना. So this cholesterol, even the presence of the unsaturated fatty acid plus the long length of the fatty acid chain are responsible for in the inhibition of phase transition. ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से हमें बचाता है. अगर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है तो उसकी वजह से क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है परमिलेबिलिटी. सो दीज आर द ऑल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन परमेबिलिटी. इसकी वजह से क्या हो जाता है, इट एनहांस आवर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ द लिपिड बाइलेयर.